record the lecture. This is the data set. Today I will discuss how to enter the data into eView 9. So this is so easy. Just it needs little practice. You can see here the data set in Excel file. Country is in the column. Pakistan is country that is taken in the column. Then time period is over here from 1995 to 2019. Then variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. One of them is the dependent variable. The other variables are independent variables. Here GDP growth. Here GDP growth is a dependent variables. Other 7 variables are independent variables. So now the process is to enter data from Excel to eView. Now I'm going to retrieve data. Here, when you will click on eView, okay, you click on here, open a foreign file such as Excel. Here, now I'm going to open the RAFIA work. Be said, your work is here, RAFIA data is here. You can see here RAFIA data. Country, you please verify. Country is in the column, time in the column, then variables, name in the row, and the all variables in column. You can see here all variables data. Predefined ratio, that is the series data. We will take. So you know here data. We will take data file. You can see here 2 files in Excel file is over here. One file is data file. The second file is series metadata. You can see here. बेटा क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे एक डाटा फाइल है, सेकंड इसमें सीरीज फाइल है जिसमें वेरिएबल्स की डेफिनेशंस रिटन है. बेटा डाटा फाइल में देखिएगा आपने यहाँ पे डाटा फाइल क्लिक करना होगी जिसमें डाटा पड़ा हुआ है. ऑटोमेटिकली eView वो डाटा एक्सेल से उठा लेगा और उसको कंसीडर कर लेगा. एज इट इज आपने डाटा ले लेना है. फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा अपोजिट हो, लाइक जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आपकी रो में हो, कॉलम में ना हो. ये सारे वेरिएबल्स बेटा आपके कहाँ पड़े हुए हैं? कॉलम फॉर्म में. अगर आपकी रो फॉर्म में पड़े हुए हैं तो आप इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे. आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. फाइनली ऑलरेडी जो आपका डाटा है उसमें वेरिएबल्स आपकी कॉलम फॉर्म में, कंट्रीज जो है वो आपका रो फॉर्म में. सो नो नीड टू प्रेस हियर टू क्लिक ऑन हियर. दैट इज ओके. नाउ वी नीड टू गो नेक्स्ट. So here header line 1 country name, you can write here country name Pakistan. You can see here country name Pakistan, and description no need. Data type, names, description only. Names in first line, names in last line, you know please. Names in first line, you can see here the preview. Names in the first line. Then data characters, numbers. You can see here the numbers very clear. Now go next. Now the data is very clear over here.
time here, control here, government, all variables are here, very clear. Now I'm going to finish it. Basic structure is data regular frequency, annual delta, that is annual data. Click on here, annual data. Okay. Now finish over here. Now here, start dates. The data start from 1995. डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो क्लियर हो गया यहाँ पे. ओके ओके बेटा, नॉन गोइंग टू फिनिश. Here the problem is about software, no needs update, no needs. Because EView 11 is available. We are working with EView 9. Now बेटा, ये राफिया का डाटा है. Here C is the constant. ये constant बेटा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया हुआ है, ये मैंने जनरेट नहीं किया. Here variables name, control corruption, GDP growth, government effectiveness, gross fixed capital transformation. Here Pakistan country name, political stability, regulatory authority, residual. So here when you make economic model, then what is the economic model? GDP growth is a function of all variables. फिर आप उसको इकोनोमेट्रिक फॉर्म में राइट करते हैं. GDP is equal to constant plus beta 1 control of corruption, beta 2 government effectiveness, beta 3 gross capital formation, beta 4 political stability, beta 5 regulatory quality, beta 7 rule of law, beta 8 vice and accountability, plus error term plus residual, that is over here. Very clear? That is a way of taking data, of retrieving data from Excel to EView. बेटा ये मैंने EView से डाटा ले लिया है, मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा EView की. आप अपने अपने लैपटॉप में EView इंस्टॉल कर सकते हैं. मुझे बच्चे सारे अपना ईमेल सेंड करें, मैं आपको EView की फाइल सेंड कर दूंगा. आप वो डाउनलोड करेंगे. फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसको फर्दर यूज करेंगे. मेथड मैंने आपको बता दिया है. हर सूरत में हर बच्चा आप EView डाउनलोड करेगा. नो कंसेशन फॉर एनीबॉडी. और ऐसे ही आपको डाटा पर्सनली परफॉर्म करना होगा, आपने करना होगा ऐसे ही बेटा. अदरवाइज मेरी तरफ से आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगी अगर आप डाटा एस्टिमेशन खुद नहीं कर पाएंगे. मैंने स्टार्ट ले लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट, टू वेरीफाई दैट ऑल वेरिएबल्स आर स्टेशनरी एट विच लेवल. अब आपने देखना है कि सारे वेरिएबल्स किस लेवल पे स्टेशनरी. मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा स्टेशनरिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए. बेसिकली स्टेशनरिटी टेस्ट होता क्या है? स्टेशनरिटी टेस्ट बेसिकली हम हर वेरिएबल्स के लिए स्टेशनरिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं. जब हम किसी भी वेरिएबल के लिए स्टेशनरिटी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डाटा उसका एक कांस्टेंट ट्रेंड है या वो वेरी कर रहा है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका लेवल पे कांस्टेंट ट्रेंड होता है, यानी वो एक कांस्टेंट ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहे होते हैं. लेट्स अज्यूम, मैं आपके सामने अभी ओपन करता हूं कंट्रोल ऑफ करप्शन. क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, दोबारा से करता हूं.
डबल क्लिक करना है कंट्रोल ऑफ करप्शन पे, आपका वेरिएबल हो गया ओपन। अब आप देखना चाहते हैं इसका ट्रेंड क्या है, यू प्लीज कम हियर ग्राफ, फर्स्ट गो व्यू, देन ग्राफ, basic type, line symbol is okay. You can see here fluctuation in the data. आपको बेटा बहुत क्लियर फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, एक ट्रेंड नहीं डाटा का। यहाँ पे ये डाटा अब कहाँ पे स्टेशनरी है वो हमें देखना पड़ेगा, लेवल पे स्टेशनरी है, इसका कोई खास ट्रेंड डाटा का नहीं है। स्टेशनरिटी टेस्ट से हमें पता चलेगा क्या लेवल पे डाटा का जो है वो ट्रेंड खास ट्रेंड होगा, या फर्स्ट डिफरेंस पे होगा, या उस वेरिएबल का सेकंड डिफरेंस हम लेंगे। फर्स्ट डिफरेंस ओके बेटा, अब इसको क्लोज कर रहा हूं। नो नीड टू सेव इट। वन बाय वन हम वेरिएबल को क्या करेंगे, उनकी स्टेशनरिटी टेस्ट करेंगे। स्टेशनरिटी टेस्ट कैसे कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फर्स्ट आप सॉरी डबल क्लिक करेंगे, वो वेरिएबल ऑन करेंगे हम। Now what happened to it? Again, I'm going to open a view. Again, but I'm going to open the again recent files. With one click, it is open. First, data. Country name Pakistan. Names in first line. Data in number. Go next. $1995. Finish. So here, click every variable. मैंने डबल क्लिक किया तो आपके पास वो वेरिएबल ओपन हो गया। Now view. Then this option, please come on here, come on this option. Unit root test. Test type, augmented Dickey Fuller test. Many options, but you select augmented Dickey Fuller test. You can apply the other tests, but you please select first only. Then test for unit root in level. Okay. First difference level, first I select on level and intercepts. Intercept mean constants, with constants. Okay, now I said okay. You know, I did check for you the trend. Did you find any trend for this variable? बेटा उस वेरिएबल में कोई ट्रेंड नहीं था, वो डाटा स्टेशनरी नहीं था, उस डाटा में क्या थी, फ्लक्चुएशन थी। मैंने आपको उस डाटा का व्यू मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। दोबारा से आप व्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन व्यू चेक करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, यहाँ पे आप देखिएगा, दिस इज ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। वी विल अप्लाई फॉर ईच वेरिएबल टू टेस्ट द स्टेशनरिटी। हम हर वेरिएबल की स्टेशनरिटी चेक करेंगे। जो बिगिनर रिसर्च है
उनके लिए स्टेशनरिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इंपॉर्टेंट होने की बेटा सबसे बड़ी वजह यह है कि विदाउट स्टेशनरी टेस्ट हमारे एनालिसिस जो है वो इनकम्प्लीट होगी, हमारी एस्टिमेशन ठीक से नहीं होगी। ओके, टू रीच द बेस्ट आउटकम्स वी फर्स्ट अप्लाई augmented Dickey-Fuller unit root test for each variable. So this is the outcome file unit root test. बेटा ये आउटकम फाइल है यूनिट रूट टेस्ट। परेशान नहीं होना, हर चीज यहाँ पे मेंशन है। नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट वन इज द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है यूनिट रूट टेस्ट का? दैट इज कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज अ यूनिट रूट प्रॉब्लम। नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा कि ये वेरिएबल यूनिट रूट प्रॉब्लम रखता है, इसके इट हैज यूनिट रूट प्रॉब्लम। यूनिट रूट प्रॉब्लम मीन इट हैज स्टेशनरिटी प्रॉब्लम। स्टेशनरिटी प्रॉब्लम मीन डाटा इज नॉन स्टेशनरी, इसमें फ्लक्चुएशन है डाटा में। बेटा मैंने आपको लास्ट ही ओपन करके चेक करवाया था, डाटा में फ्लक्चुएशन। अब डाटा फ्लक्चुएशन आपने देख ली, उसके लिए यूनिट रूट टेस्ट हमने अप्लाई किया। मैंने आपको बताया था। अब लेवल क्या होता है बेटा? लेवल होता है सिंपल फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज डाटा, उसका कोई लैग नहीं लिया हुआ हमने, कुछ भी नहीं लिया हुआ। ओके, एक्सोजिनस क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, हमने लिखा था इंटरसेप्ट कांस्टेंट। लैग लेंथ यहाँ पे क्या है? 2, दैट इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। लैग लेंथ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। उसके बाद ऑगमेंटेड डिकी-फुलर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एडीएफ टेस्ट की, वो क्या है? -0.526829। ओके, दिस वैल्यू इज, आप इसको विदाउट साइन चेक करेंगे। ये जो स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है बेटा? टेबुलेटेड वैल्यू। जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं वो टेबुलेटेड वैल्यूज होती हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एट फर्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट सेकंड, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेटा आप ऑलरेडी इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि वो रिजल्ट कितने परसेंट रिलायबल है। क्या 1% से मुराद क्या है? 99% चांसेस ये हैं, 99% चांसेस ये हैं कि डाटा क्या है? स्टेशनरी है। अगर टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस टेबुलेटेड वैल्यू, देन 5% से मुराद क्या है? 95% ये चांसेस हैं कि टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड वैल्यू, जबकि ऐसा नहीं है। एट 10% लेवल इट मीन 90% चांसेस हैं कि टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। बात क्लियर होगी बेटा? यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है, ना तो 99% चांसेस है, ना तो 95% चांसेस है, ना तो 90% चांसेस है कि यहाँ पे डाटा स्टेशनरी है। देन हम क्या करेंगे? वी विल एक्सेप्ट H0, नॉट रिजेक्ट। अगर आपकी टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो जाती है किसी भी लेवल पर, देन हम क्या करेंगे? H0 को रिजेक्ट करेंगे। जब हम H0 को रिजेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि कंट्रोल ऑफ करप्शन वेरिएबल हैज नॉट अ यूनिट रूट प्रॉब्लम, हैज नॉट अ यूनिट रूट प्रॉब्लम। मैं आपको बेटा एक बात बताता हूँ यूनिट रूट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल 2017 में जो फॉर एग्जांपल हमारे पास उस्मान के पास जो कंपनी हुई है,
वो हुई है बेटा 50 मन गंदम हुई है। उसके बाद 2018 में कितने परसेंट हुई है, कितने मन हुई है, 60%, 60 मन। 19 में 70 मन हुई है, 20 में 70 मन हुई है। अब आपको नजर आ रहा है ये ट्रेंड चल रहा है, ऊपर बढ़ती जा रही है गंदम का ट्रेंड। इट मीन जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ एक्चुअल टर्म में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 3 इयर्स में जो ग्रोथ हुई है वो सेम है, लाइक चेंज नहीं है प्रोडक्शन में। 51 51 51 51 17 से लेकर 2020 तक गंदम की बीट प्रोडक्शन क्या है, 51। लेकिन 17 में गंदम की प्राइस थी 1000 रुपीज, 18 में प्राइस थी 1200 रुपीज, 19 में प्राइस थी 1500 रुपीज, 20 में प्राइस है बेटा 1800 रुपीज। अगर आप प्राइस को देखकर गंदम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। 50 मन मल्टीप्लाई 1000, 50,000 रुपीज। 50 मन मल्टीप्लाई 1200 रुपीज, रिटर्न क्या होगा, 60,000 रुपीज। बात भी कर रहे। देन 2019 50 मन मल्टीप्लाई 1500 रुपीज, 75,000। अब एक्चुअल में गंदम की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ, वो एक सीक्वेंस चल रहा है 51, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, नॉमिनल टर्म पे वीट की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट है। हो सकता है किसी साल प्राइस लेवल कम हो जाए लेकिन प्रोडक्शन में चेंज ना हो, देन क्या होगा, वीट का ट्रेंड डिस्टर्ब होगा। अगर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब है कि डाटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट डिफरेंस ले लेते हो सकता है फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी हो जाए। वेरिएबल का फर्स्ट डिफरेंस आपको लेना होगा। अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल बात कर रहा हूँ समझाने के लिए आप। अब यहाँ पे क्या है, टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, नॉट रिजेक्ट एच नॉट। अगर टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती देन हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन ये लेस आ रही है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दे बेटा, लेस आ रही है, देन वी एक्सेप्ट एच नॉट। सो दिस सीरीज हैज अ यूनिट रूट प्रॉब्लम। एक तो आप टी स्टैटिस्टिक्स से देखिए, सेकंड आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी से। Here probability is 0.5. This probability value is much greater than 1%, 5% and 10%. 1% mean 0.1, 5% mean 0.05, 10% mean 0.01. Probability is greater than 0.01, 0.05 and 0.1. Where probability is greater than, then probability is greater than 0.01, 0.05 and 0.1, then we accept it not. So यहाँ पे लेवल में यूनिट रूट प्रॉब्लम आ रहा है। Now we will go to the next to see further at first difference, unit root problem, first difference. Then I'll click on here. I said right. You can see here T statistics calculated value is greater than the tabulated value at all levels. जब वन लेवल पे ग्रेटर है, वन लेवल बेटा बहुत हायर सिग्निफिकेंट लेवल होता है। इट मीन 99% चांसेस ये हैं कि यहाँ पे यूनिट रूट प्रॉब्लम नहीं है, because T statistic value is greater than the tabulated value at 1% level, even at 5 and 10% level. Then at 1% level, it is greater than the tabulated value, then it means 99% chances है कि यहाँ पे यूनिट प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, we reject H naught.
बात क्लियर होगी बेटा। ये सिंपल सी वेरिफिकेशन। अब टाइम हमारे पास बहुत कम है। आई एम गोइंग टू क्लोज आवर लेक्चर। वी विल सी द नेक्स्ट आवर लेक्चर। इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम you will share. This is your attendance picture. Is okay. Now I'm going to close the lecture. If you have any question, you can ask in the next lecture. Or because less than 1 minute is left. Okay. Now, if you have any question, we will discuss in the next class. Okay, beta. Allah Hafiz.